In this lesson, we are going to start our last unit, that is numerical solution of ordinary differential equation for the paper Scientific Computing of BCA third semester. I am Subodh Kumar, Assistant Professor, BCA Department, Jamshedpur Cooperative College. So first of all, let us see what is differential equation. The mathematical models which use differential calculus to express relationship between variables are known as differential equations. Also, many of the laws in physics, chemistry, engineering, biology and economics are based on observations that describe changes in the states of systems. Mathematical models that describe the state of such systems are often expressed in terms of not only certain system parameters but also their derivatives. So it is very important topic. In this unit we mainly concentrate on the solution of ordinary differential equations and discuss the following methods. We have three methods, that is Taylor series method, Euler's method and Runge-Kutta method. So in first part of this video we will start with Taylor series method. So before starting the Taylor series method, let us see some basic definitions so that it will be easy for us to understand the various methods for finding the or for solving the differential equations. The first term is order. The order of a differential equation is the highest derivative that appears in the equation. When equation contains only a first derivative, it is called a first order differential equation. A first order differential equation can be expressed in the form y dash, that is dy by dx equals to f of xy. Our second term is degree. The degree of a differential equation is the power of the highest order derivative. Now let us see some example to find the degree and order of some equations. So here is the first example, dy by dx equals to e to the power x. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो dy by dx है इसका कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स पावर 1 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री हो गया 1। और यहाँ dy by dx है, यहाँ पर ऑर्डर भी जो है 1 है, यहाँ डी में कोई पावर में 2 या 3 ऐसा नहीं है, तो dy by dx जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी यहाँ पर ऑर्डर हो गया 1 एंड डिग्री भी हो गया 1। dy by dx को हम लोग y डैश इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि डी स्क्वायर है, दैट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 2 और यहाँ पर भी कोई पावर में 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पावर में कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स पावर यहाँ पर 1 है, तो डिग्री हो गया 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर डी क्यू वाई, यहाँ पर ऑर्डर 3 है और यहाँ पर ऑर्डर 2 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 3 है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा 3, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, वैसे भी जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यू और इसका पावर यहाँ पर 1 है, तो डिग्री हो गया 1। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं,
क्या है, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 1। लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स का होल पावर 2 है, तो डिग्री जो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया 2। तो आप लोग ऑर्डर और डिग्री ये दो टर्म अच्छा समझ गए होंगे, और ये दो फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डैश, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश, एंड डी क्यू बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश। नाउ we can start with Taylor series method. We consider the differential equation y dash equals to f xy, that is equation 1, with initial condition, that is y x0 equals to y0, that is equation 2. If yx is the exact solution of y dash equals to f xy, then by Taylor series for yx around x equals to x0 is given by this formula. तो ये जो फॉर्मूला है y x इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो वाई डैश जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस एक्स थ्री होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सिमिलरली and so on, which is equation 3. In the equation 3, if we consider x minus x0 as h, here it is, then the formula can be written as yx equals to y0 plus h y dash 0 plus h square by 2 factorial y double dash 0 plus h cube by 3 factorial y triple dash 0, similarly and so on. If the values of y0, y dash 0, y double dash 0, y triple dash 0 and so on are known, then the equation 3 or equation 4 gives a power series for y. So we can find y for any value of x using this formula. तो आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि टेलर सीरीज को यूज करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यूज टेलर सीरीज मेथड टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, फॉर x इक्वल्स टू 0.25 एंड x इक्वल्स टू 0.5 गिवन डेट y0 और y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y0 और y ऑफ 0 दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1, सो डेट x0 इज 0। ये कहाँ से आ गया, ये जो वैल्यू है डेट मीन्स ये x0 है, तो y ऑफ x0 इक्वल्स टू 1 ये दिया हुआ है, डेट मीन्स x0 0 हो गया। तो द टेलर सीरीज अप टू 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स ही क्यों लेंगे, तो जितना ज़्यादा टर्म्स लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग 3 टर्म लेते हैं, और डेट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव तक। तो टेलर सीरीज फार्मूला हम लोग का हो गया y0 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो y dash 0 plus x minus x0 by 2 factorial, x minus x0 square by 2 factorial, second order derivative, that is y double dash 0 plus x minus x0 cube by 3 factorial y triple dash 0। तो ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। अब इस फार्मूला में y dash 0 फर्स्ट डेरिवेटिव, y double dash 0 सेकेंड डेरिवेटिव, y triple dash 0 थर्ड डेरिवेटिव, ये अगर 3 टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस फार्मूला में पुट करके एक इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वी हैव y0 इक्वल्स टू 1 एंड x0 इक्वल्स टू 0। तो y डैश x जो यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है, y डैश x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग 0 पुट करते हैं, तो y डैश 0 जो हो जाएगा x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर, और x0 का वैल्यू है 0,
और y0 का वैल्यू है 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज y डबल डैश एट x इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हमें जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y एंड dy बाई डी एक्स डेट इज y डैश। अब यहाँ पर x की जगह x0, y की जगह y0 एंड y डैश की जगह y डैश 0 पुट करेंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करने के बाद x0 0, y डैश 1 और y डैश 0 जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है ये 1, इसको पुट करेंगे तो y डबल डैश 0 हमें मिल जाएगा 2। सिमिलरली y ट्रिपल डैश 0 ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये जो हम लोग का आया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोगों ने निकाला था, इसको फिर से डेराइव करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस 2y y डैश को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2y डैश स्क्वायर, y डैश यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर 2 तो यहाँ हो गया, y डैश की जगह y, अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 फाइंड करने के लिए 2 प्लस यहाँ y की जगह y0, y डैश की जगह y डैश 0, y डबल डैश 0 और यहाँ पर y डैश की जगह 2y डैश 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 y डैश का वैल्यू 1 जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, y डबल डैश 0 का वैल्यू 2 जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, और y डैश 0 का वैल्यू 1 जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश एट x इक्वल टू 0 में मिलेगा 8। अब ये तीन वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो इसको हम लोग टेलर सीरीज के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने से हमें x का टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा और उस x का जगह 0.25 और 0.5 पुट करने से हमको फाइनल y का वैल्यू मिल जाएगा। सो जो फार्मूला हम लोग है इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है हम लोग का, इस फार्मूला में जो हम लोगों ने पहले भी लिखा था y0, y डैश 0, y डबल डैश 0 एंड y ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 1, y डैश यहाँ पर हम लोग का 1 है, y डैश 0 1, y डबल डैश 0 2 और y ट्रिपल डैश 0 8 है। तो सब्स्टिट्यूट करने से हमें वैल्यू इस प्रकार मिल जाएगा 1 प्लस x, यहाँ x0 मेरा 0 है इसलिए x माइनस 0 x हो गया, और y डैश 0 1, x माइनस x 0 यहाँ फिर से x हो गया तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 और y डैश 0, y डबल डैश 0 2, यहाँ पर हो गया 2, x माइनस x 0 यानी कि x, यहाँ x क्यूब हो गया बाई 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 6 और यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश 0 8। तो इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिल गया, y x इक्वल टू 4/3 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब x इक्वल टू 0.25 के लिए हमको y का वैल्यू फाइंड करना था। तो इस इक्वेशन में यहाँ जो हम लोग का इक्वेशन निकला है, इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू 0.25 पुट कर देंगे तो 4/3 0.25 क्यूब प्लस 0.25 स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 1, इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 1.3333। ये पहला y का वैल्यू हो गया एट x इक्वल टू 0.25। सिमिलरली इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0.5 पुट कर देंगे तो हमको y मिल जाएगा एट x इक्वल टू 0.5। तो 4/3 0.5 क्यूब प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 प्लस 1 और ये हमको आंसर मिल जाएगा 1.91667। तो इस तरह से हम लोग टेलर सीरीज यूज करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और y का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख दिया है और मैच करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन जो है, फाइंड द टेलर सीरीज मेथड
find by Taylor series method the variable of y at x equals to 0.1 and x equals to 0.2. जैसा पिछला एग्जाम्पल में हम लोग किया था, x equals to 0.25 और x equals to 0.5 के लिए y की वैल्यू निकालना था, उसी तरह यहाँ पर x equals to 0.1 और x equals to 0.2 के लिए वैल्यू निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. अब 3 डेसिमल प्लेसेस दिया है, दैट मीन्स इसमें भी सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह y ट्रिपल डैश 0 तक वैल्यू हमको यूज करना पड़ेगा सीरीज में. up to 3 decimal places from the equation dy by dx equals to x square y minus 1. यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx that is y dash equals to x square y minus 1 where y0 equals to 1. तो यहाँ भी x0 जो है वो 0 दिया हुआ है और y0 हो गया 1. तो यहाँ पर आप 4 टर्म्स ले लीजिएगा, यानी कि पहला टर्म तो y0 हो गया और फिर y dash 0, y double dash 0, y triple dash 0 फाइंड करके सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हमको कर देना होगा. तो y एट 0.1 0.9003 ये आंसर आना चाहिए और y एट 0.2 0.8022 ये आंसर आना चाहिए. यहाँ पर 0.9 भी आएगा तो सही है क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमको आंसर लाना है और यहाँ पर 0.802 पर ये भी आंसर आएगा तो भी सही है क्योंकि हमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कैलकुलेट करना है. So that's for today's session. In next session we will learn Euler's method. Thanks for